Hello students, today we will discuss operator precedence parsing. In this we cover topics operator precedence grammar, needing and trailing, operator precedence table and operator precedence functions. Now let's see what is operator precedence grammar. Okay, for a grammar to be operator precedence grammar, the grammar have to satisfy two properties. The first property is no production right side is epsilon. It means right side production में कोई भी production epsilon production नहीं होना चाहिए. Okay. The second is the no production right side has two adjacent non terminals. तो राइट साइड प्रोडक्शन में दो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स नहीं होने चाहिए. ओके अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन द ग्रामर इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. इन दिस इफ यू सी द प्रोडक्शन ई ए ई, तो देयर आर थ्री एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स ई ए एंड ई. ओके and thus it violates the second property that no production at right side has two adjacent non-terminals. Okay, so our objective is that we have to can we convert this grammar into an operator precedence grammar. So here what we are doing here, we are replacing the value of a from these productions. If you replace a with plus, this becomes e plus e. You can see e plus e. If you replace a by minus in a e e, it becomes e minus e. Okay, the same way it becomes e asterisk e, divided by e, and so on. And then this grammar is reduces to that grammar. Okay, and now this grammar is satisfying both the properties of operator precedence grammar. In this grammar, there is no epsilon production and there is no production having two non-terminals that are adjacent. Okay, so this grammar is an operator precedence grammar, and if the grammar is operator precedence grammar, then we can construct an operator precedence parser. Okay, now in operator precedence parsing, we have to define the precedence relations among operators. So there are three precedence relations. This is a less than b. It means A yields precedence to B. It means B has higher precedence than A. Okay. A equals to B means A has the same precedence as B. Here A and B have the same precedence. And E greater than B means A takes precedence over B. These are the three relations that defines the precedence among the operators. Okay. Now in operator precedence parsing, we use a precedence table for parsing. Okay, we will see later how this table is constructed. Okay, for this grammar, this is the operator precedence table and this is the input string जिसे कि हमें पार्स करना है id1 plus id2 asterisk id3. Okay, so before parsing, what we have to do, we have to insert precedence relations in this input string using this precedence table. Okay, पहले हमें करना क्या है कि इस स्ट्रिंग के बिगनिंग में हमें डॉलर और एंड में डॉलर ऐड करना है. ओके, तो दिस स्ट्रिंग नाउ बिकम्स डॉलर id1 प्लस id2 एस्ट्रिक्स id3 डॉलर. ओके, एंड देन वी हैव टू इंसर्ट द प्रेसिडेंस रिलेशंस फ्रॉम दिस टेबल इन द इनपुट स्ट्रिंग. तो डॉलर और id1 के बीच में क्या रिलेशन है, तो दिस इज डॉलर एंड दिस इज id1, दिस इज लेस देन. तो यू कैन सी डॉलर id1, इट इज ए लेस देन precedence relation is there. After that id1 of plus, this is id and this is plus, it is greater than. You can see id1 और plus के बीच में this is the greater than precedence relation insert किया गया है. Then plus id2 है, तो this is your plus and this is id, this is less than, this is plus और id2 के बीच में less than precedence relation है. So in this way we have to insert the precedence relations in the input string, and after that this string will be parsed. इस स्ट्रिंग को हमें पार्स करना है. ओके, नाउ पार्सिंग के लिए देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स आर देयर. द फर्स्ट स्टेप इज स्कैन द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट अंटिल सीइंग ग्रेटर देन रिलेशन एंड पुट ए पॉइंटर. हमें क्या है, जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको लेफ्ट से राइट की ओर स्कैन करना है. तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे स्कैन करना और तब तक स्कैन करेंगे जब तक कि हमें ग्रेटर देन प्रेसिडेंस रिलेशन सिंबल नहीं मिल जाता. ओके,
Afterwards, we have to scan backwards the string from right to left until seeing less than precedence nation. फिर वहाँ से हमें वापस बैकवर्ड ट्रेवर्स करना है तब तक जब तक कि हमें लेस देन प्रेसिडेंस नेशन नहीं मिल जाता. ओके, एवरीथिंग बिटवीन द टू नेशंस लेस देन और ग्रेटर देन फॉर्म्स द हैंडेड. ओके, तो जो कुछ भी लेस देन और ग्रेटर देन प्रेसिडेंस नेशंस के बीच में है दैट इज द हैंडेड. ओके, हैंडेड मीन्स कि दैट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग is matching the right side production of a grammar symbol. Okay, what we have to do, replace the handle with the head of the production. तो उस राइट हैंड साइड प्रोडक्शन को रिमूव करके वहाँ पे हमें पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड ग्रामर सिंबल को. तो दिस इज द स्टेप टू प्रोसेस द इनपुट स्ट्रिंग. दिस इज द ग्रामर इज देयर. ओके, एंड दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग, एंड दिस स्ट्रिंग becomes after inserting the precedence nations. We start from scanning the string from left to right till we get larger than precedence nation. So we starting from here, we stop at this position. From there we have to move backward till we reach this precedence nation less than. Okay, so from there we move backward and reach this one. So between these two precedence nations, this string is a handle. Okay, it is matching the right side production of the grammar. We have to replace this with the left hand side grammar symbol. Okay, so this is the action is there, it has been removed, this id is replaced by e. Okay, and this string has been read. Now this string is now reduced to that string, and the same procedure is again, then we have to reduce this id and that id, afterwards we reach there. Now here we have again inserted the precedence nations in this string. So from the precedence table we have to insert the precedence nations in this string, and the string now converted to in this form. Okay, again we have to scan from left to right till we get this symbol. From here we have to move backward till we have reached the less than precedence symbol, whatever in between there. This is a handle, this is the asterisk, this is e asterisk e, and this is replaced by e, and this now becomes this one. Here we have to insert the precedence nation between plus and dollar, that this string becomes like that, and this plus e is reduced by e, and finally we get this is the start symbol, and this string now changes to dollar. Since we have reached to the start symbol, hence the string is successfully passed by the grammar. Okay, now how we can compute kneading and training. Okay, now kneading of a non-terminal a is a set of odd terminals such that if a derives a production of this type ya, okay, where y is a epsilon or a single non-terminal, then kneading of a can be interpreted as looking for the first terminal from the left in the right hand side of a production by applying all possible derivations for the production. तो दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कि अगर राइट हैंड साइड का प्रोडक्शन है ये, हमें करना क्या है कि लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, और जो पहला टर्मिनल मिलेगा दैट टर्मिनल विल बी द पार्ट ऑफ नीडिंग ए. ओके, तो लेफ्ट से राइट हमें मूव करना है, और जो पहला टर्मिनल मिलेगा दैट इज एडेड टू द नीडिंग ऑफ ए. एंड देयर आर टू रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नीडिंग ए. ए इज इन नीडिंग ऑफ ए इफ ए डिराइव्स वाई ए डेल्टा वेयर वाई इज एप्सिलॉन और एनी नॉन टर्मिनल. तो वही है कि हम इस स्ट्रिंग राइट हैंड साइड प्रोडक्शन में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, जो पहला टर्मिनल मिलेगा उसे हम नीडिंग ऑफ ए में ऐड कर देंगे. सेकेंड रूल है कि इफ ए इज इन नीडिंग ऑफ बी देन ए प्रोडक्शन ए डिराइव्स बी अल्फा देन ए इन नीडिंग ऑफ ए. तो प्रोडक्शन इस टाइप का है कि ए डिराइव्स बी अल्फा, जिसमें पहला जो सिंबल है वो एक नॉन टर्मिनल है. इन दैट केस नीडिंग ऑफ बी बिकम्स नीडिंग ऑफ ए. तो जो कुछ भी नीडिंग ऑफ बी में था वो नीडिंग ऑफ ए में ऐड हो जाएगा. तो नीडिंग ऑफ बी नाउ बिकम्स नीडिंग ऑफ ए. इफ
द राइट हैंड साइड प्रोडक्शन का पहला सिंबल जो होगा वो एक नॉन टर्मिनल होगा. तो दीज आर द टू रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नीडिंग ऑफ ए. सेम वे ट्रेनिंग ऑफ ए is a set of on terminals such that if a production of type A derives by a delta where delta is epsilon or a single non-terminal, thus training of A can be interpreted as looking for the first terminal from the right in the RHS of production by applying all possible derivations of a production. तो ट्रेनिंग ऑफ ए क्या है कि जो भी प्रोडक्शन है राइट हैंड साइड पे उसको आप राइट से लेफ्ट की ओर स्कैन करिए. ओके, नीडिंग में वी आर स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इन ट्रेनिंग वी हैव टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो पहला टर्मिनल मिलेगा उस टर्मिनल को हम ऐड करेंगे ट्रेनिंग ऑफ ए में. ओके, दे आर टू रूल्स आर देयर. इफ ए इज इन ट्रेनिंग ऑफ ए, इफ ए ड्राइव्स बाय ए डेल्टा वे डेल्टा इज एप्सिलॉन और एनी नॉन टर्मिनल. तो हम राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं, जो पहला टर्मिनल मिलेगा दैट इज एडेड टू ट्रेनिंग ऑफ ए. And if A is in training of B and A derives alpha B, then A is in training of A. तो अगर राइट से लेफ्ट को मूव कर रहे हैं और पहला ही सिंबल आपको नॉन टर्मिनल मिल गया, तो इस नॉन टर्मिनल B में जो भी होगा ट्रेनिंग ऑफ B हो, इट बिकम्स ट्रेनिंग ऑफ A. ओके, दीज आर द टू रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेनिंग ऑफ A. नाउ लेट्स अप्लाई these rules to compute training and needing for this grammar. Okay, there are three non-terminals E, T and F. For these non-terminals we have to calculate needing and training. First calculate needing of E. Okay, so there are two productions E plus T and T. If you look at E plus T को देखें तो E plus T को अगर आप लेफ्ट से स्कैन करें तो पहले E मिलेगा फिर प्लस मिलेगा. तो लेफ्ट से स्कैन करने पे जो सबसे पहला टर्मिनल मिला वो आपको प्लस मिला, तो प्लस इज नाउ एडेड टू नीडिंग ऑफ E. You can see it. Okay, now come to the second production E derives T. Okay, मगर यहाँ पे रूल नंबर 2 अप्लाई होगा कि जो कुछ भी नीडिंग ऑफ T होगा वो नीडिंग ऑफ E में ऐड होगा. तो नीडिंग ऑफ T नाउ बिकम्स नीडिंग ऑफ E बाई रूल नंबर 2. ओके, सिंस वी हैव नॉट कंप्यूटेड नीडिंग ऑफ T टिल नाउ. ओके, तो हमने कंप्यूट नहीं किया है. लेट्स कम टू कंप्यूट द नीडिंग ऑफ T. तो फ्रॉम दिस प्रोडक्शन T एस्टिक्स F फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो फर्स्ट टर्मिनल मिलेगा एस्टिक्स. तो एस्टिक्स इज एडेड टू द नीडिंग ऑफ T. यू कैन सी हियर. एंड फ्रॉम द T डिराइव्स F से वट एवर इन नीडिंग ऑफ F दिस इज एडेड टू नीडिंग ऑफ T. तो चूँकि नीडिंग ऑफ F अभी हमने कंप्यूट नहीं किया, लेट्स कम टू F. यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्शन है ओपनिंग ब्रेस E क्लोजिंग ब्रेस. अगर लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो पहला जो टर्मिनल मिलेगा दैट इज ओपनिंग ब्रेस. दिस इज एडेड टू नीडिंग ऑफ F. नाउ कम टू द सेकंड प्रोडक्शन F डिराइव्स ID. ओके, तो अगर हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्मिनल आपको ID मिल जाएगा. एक ही टर्मिनल है, चाहे लेफ्ट से रीड करें चाहे राइट से रीड करें, आपको ID ही मिलना है. दिस ऑल्सो एडेड टू द नीडिंग ऑफ F. तो फ्रॉम दिस प्रोडक्शन वी गेट ओपनिंग ब्रेस, फ्रॉम द सेकंड प्रोडक्शन वी गेट ID. दोनों का यूनियन किया तो नीडिंग ऑफ F नाउ बिकम्स ओपनिंग ब्रेस ID. नाउ कम टू द needing of T. So from first production we compute asterisks as the needing of T. From second production needing of F is now becomes needing of T. Needing of F is opening brace and ID. तो from T drives F से आपको मिला opening brace and ID और T asterisk F से आपको asterisk मिला. इन दोनों प्रोडक्शंस के नीडिंग को यूनियन करेंगे तो वी गेट नीडिंग ऑफ T एज asterisk opening brace ID. एंड सेम वे E प्लस T से प्लस मिला. ओके, और नीडिंग ऑफ T इज एस्टिक्स ओपनिंग ब्रेस ID. तो प्लस एंड नीडिंग ऑफ T का यूनियन किया वी गेट नीडिंग ऑफ E. ओके, नाउ कम्स टू कंप्यूट ट्रेनिंग ऑफ E. तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन. नाउ वी हैव टू रीड द प्रोडक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है, तो राइट से चलेंगे तो पहले T मिलेगा फिर प्लस मिलेगा. तो राइट से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट तो पहला टर्मिनल मिला प्लस. तो प्लस विल बी एडेड टू द ट्रेनिंग ऑफ E. ओके, नाउ E डिराइव्स T. तो T में जो भी होगा ट्रेनिंग ऑफ T इज नाउ बिकम्स ट्रेनिंग ऑफ E. सिंस टिल नाउ वी हैव नॉट कंप्यूटेड ट्रेनिंग ऑफ T. ओके, तो कम टू कंप्यूट ट्रेनिंग ऑफ T. फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्शन
अगर हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं तो वी गेट फर्स्ट टर्मिनल एज एस्ट्रिक्स. द एस्ट्रिक्स इज एडेड टू द training of T. Okay, from the second production, whatever in the training of F, it is now added to the training of T. But training of F, still now we have computed, come to the this point to compute training of F from first production. अगर हम राइट से लेफ्ट चलें तो पहला टर्म मिलेगा क्लोजिंग ब्रेस. ओके, तो दिस इज एडेड टू ट्रेनिंग ऑफ एफ. फ्रॉम द सेकेंड प्रोडक्शन वी गेट आई डी. तो देन द ट्रेनिंग ऑफ एफ नाउ बिकम्स क्लोजिंग ब्रेस एंड आई डी. ओके, फ्रॉम अब टी कंप्यूट करते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्शन से वी गेट एस्टिक्स एंड टी डिराइव्स एफ से. ट्रेनिंग ऑफ एफ इज योर क्लोजिंग ब्रेस एंड आई डी. क्लोजिंग ब्रेस एंड आई डी union asterisk, this becomes asterisk closing brace and id. Now compute training of E. From this production we get plus, and from this production E drives T, we get training of T as asterisk closing brace id. दोनों ही प्रोडक्शंस के ट्रेनिंग का यूनियन करेंगे, वी गेट ट्रेनिंग ऑफ ई एच प्लस एस्ट्रिक्स क्लोजिंग ब्रेस एंड आई डी. तो दिस इज द वे वी हैव टू कंप्यूट नीडिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ ए ग्रामर. ओके, बिकॉज दिस इज विल बी यूज इन कंस्ट्रक्टिंग द operator precedence parsing table. Now, how we can construct the operator precedence table? For calculating precedence, there are three types of precedence. So you know that we have to look for the operators having the same precedence. For that, what we have to do? We have to look for RHS with two terminals separated by nothing or a non-terminal. तो राइट हैंड साइड प्रोडक्शन को देखना है कि उन प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जिसमें दो टर्मिनल्स आ रहे हों. अगर वो दो टर्मिनल्स आ रहे हैं तो उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो प्रेसिडेंस होगी वो सेम होगी. ओके, फॉर लेस देन के लिए लुक फॉर ए आर एच एस विद ए टर्मिनल बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन टर्मिनल ए. तो हमें राइट साइड हैंड का प्रोडक्शन देखना है जिसमें किसी नॉन टर्मिनल से जस्ट पहले टर्मिनल आ रहा हो. टर्मिनल बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ नॉन टर्मिनल ए. तो नॉन टर्मिनल ए से पहले अगर टर्मिनल बी आ रहा है तो वी हैव टू अप्लाई रूल नंबर 2 फॉर प्रेसिडेंस लेस देन. इन दैट केस एवरी टर्मिनल बी का जो प्रेसिडेंस होगा वो लेस देन होगा विद ऑल द सिंबल्स दैट आर इन लीडिंग ऑफ ए. ओके, तो जो बी है वो ए से पहले आ रहा है तो बी की जो प्रेसिडेंस होगी वो लेस देन होगी फॉर ऑल द सिंबल्स दैट आर इन लीडिंग ऑफ ए. ओके, एंड द थर्ड रूल है, दिस इज अपोजिट ऑफ सेकेंड. Look for a RHS with a non-terminal A immediately to the left of terminal B. तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि किसी टर्मिनल से जस्ट पहले नॉन टर्मिनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सपोज B इज ए टर्मिनल और इसके जस्ट लेफ्ट में पहले A आ रहा है. इन दैट केस एवरी टर्मिनल इन ट्रेनिंग ऑफ A हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन B. तो ट्रेनिंग ऑफ A में जितने भी सिंबल्स होंगे सबकी प्रेसिडेंस B से ज़्यादा होगी. इन तीन रूल्स को अप्लाई करके वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल. ओके, तो लेट्स सी हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल. नाउ हियर वी विल कंस्ट्रक्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल फॉर द गिवन ग्रामर फॉर विच वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड नीडिंग एंड ट्रेनिंग फॉर ऑल नॉन टर्मिनल्स. ओके, दीज आर द थ्री रूल्स दैट आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल. The first rule is used for checking whether the two terminals have equal precedence or not. For that, what we have to do, look right hand side with two terminals. तो हमें राइट हैंड साइड प्रोडक्शंस को चेक करना है और उन प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जिसमें दो टर्मिनल्स आ रहे हों. तो दिस इज द ओनली प्रोडक्शन इन विच देयर आर टू टर्मिनल्स. इन दिस इज ए सिंगल टर्मिनल. इन दिस प्रोडक्शन देयर इज ऑल्सो ए सिंगल टर्मिनल, बट इन दिस प्रोडक्शन there are two terminals appearing. One is left parenthesis and other is right parenthesis. For according to rule number 1, these two terminals have equal precedence. So in this table, this is the left parenthesis and this is the right parenthesis, and we have to mark equal sign. Okay. For less than precedence, we have to apply rule number 2. Look right hand side for terminal B to left of non-terminal A. तो हमें वो नॉन टर्मिनल्स इसमें आइडेंटिफाई करने हैं जिसके पहले टर्मिनल आ रहा हो. तो जैसे ये नॉन टर्मिनल है टी जिसके पहले टर्मिनल आ रहा है, एफ है इसके पहले एस्ट्रिक्स आ रहा है, ई है इसके पहले ओपन पैरेंथेसिस आ रहा है. ओके, तो
In that case, what we have to do, every terminal B have next precedence to all the symbols in leading of A. तो इस चीज़ को कंपेयर करें विद दिस वन, तो दैट B इज योर प्लस एंड A इज योर T. इट मीन्स जो प्लस ऑपरेटर है इसका प्रेसिडेंस लीडिंग ऑफ T में जितने भी सिम्बल्स हैं उनसे कम होगा. ओके, तो लीडिंग ऑफ T क्या है, एस्टिक्स ओपन पैरेंथेसिस एंड ID. इट मीन्स जो प्लस ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस लीडिंग ऑफ T के जितने भी सिम्बल्स हैं उनसे कम होगा. तो दिस इज योर प्लस and it has less precedence than asterisk. The plus and asterisk, this is less precedence. Then open parenthesis, also less precedence, and ID and less precedence. Okay, the same we have to apply for here, where asterisk will have less precedence with all the symbols in leading of F. Leading of F में दो symbols है, तो asterisk की जो precedence है open parenthesis से कम होगी और ID से भी कम होगी. द सेम वे यहाँ पे जो ओपन पैरेंथेसिस है इसकी जो प्रेसिडेंस है वो लीडिंग ऑफ ई में जितने भी सिम्बल्स हैं उन सब से प्रेसिडेंस कम होगी. इसे ओपनिंग पैरेंथेसिस और इसकी प्रेसिडेंस प्लस से कम होगी, एस्टिक से कम होगी, ओपन पैरेंथेसिस से कम होगी एंड आईडी से कम होगी. ओके, फॉर फाइंडिंग द प्रेसिडेंस लार्जर देन वी हैव टू लुक फॉर रूल नंबर 3. हियर वी हैव टू लुक RHS विद नॉन टर्मिनल ए टू लेफ्ट ऑफ टर्मिनल बी. तो यहाँ पे हमें वो टर्मिनल्स फाइंड आउट करने हैं जिसके लेफ्ट में नॉन टर्मिनल हो. दिस इज अपोजिट ऑफ रूल नंबर 2. तो यहाँ पे आप टर्मिनल देख रहे हैं, इसके लेफ्ट में क्या है, नॉन टर्मिनल है. तो इस पर हम रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे. यहाँ पे टर्मिनल है, इसके लेफ्ट में नॉन टर्मिनल टी है, तो यहाँ पर भी रूल नंबर 3 अप्लाई होगा. यहाँ पे टर्मिनल है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसके लेफ्ट में नॉन टर्मिनल ई है, तो यहाँ भी रूल नंबर 3 अप्लाई होगा. और उसमें क्या करना होगा, एवरी टर्मिनल इन ट्रेनिंग ऑफ ए हैज लार्जर प्रेसिडेंस दैन बी. इस केस में अप्लाई करें यहाँ पे, तो ई के ट्रेनिंग में जितने भी सिम्बल्स होंगे उन सब का प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा होगा. ओके, तो ट्रेनिंग ऑफ ई क्या है, प्लस एस्ट्रिक्स क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड आईडी, इन सब का प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, इट इज़ ग्रेटर दैन. एस्ट्रिक्स का प्लस से ज़्यादा होगा, एस्ट्रिक्स का प्लस से ज़्यादा होगा. यहाँ पे जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है इसका भी प्लस से ज़्यादा होगा और जो आईडी है इसका भी प्लस से ज़्यादा होगा. द सेम वी अप्लाई रूल हेयर. तो ट्रेनिंग ऑफ टी में जितने सिम्बल्स होंगे उन सब का प्रेसिडेंस एस्ट्रिक्स से ज़्यादा होगा. तो ट्रेनिंग ऑफ टी में 3 सिम्बल्स हैं, एस्ट्रिक्स का एस्ट्रिक्स से ज़्यादा होगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस का एस्ट्रिक्स से ज़्यादा होगा और आईडी का एस्ट्रिक्स से ज़्यादा होगा. एंड द वी अप्लाई रूल हेयर. तो जो ट्रेनिंग ऑफ ई है उसमें जितने सिम्बल्स होंगे उनका प्रेसिडेंस क्लोजिंग पैरेंथेसिस से ज़्यादा होगा. तो ट्रेनिंग ई में प्लस है तो इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस से ज़्यादा होगा, एस्ट्रिक्स है इसका भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस से ज़्यादा होगा, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो इसका भी ज़्यादा होगा एंड आईडी का भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस से ज़्यादा होगा. So by applying these 3 rules, we have filled that much of the operator precedence table. And then last, what we have to do, we have to check for the precedence of all the terminals with the dollar. Okay, this is your the start symbol E. और हम इनपुट देते हैं, इनपुट से पहले हम डॉलर लगाते हैं और इनपुट के आखिर में डॉलर लगाते हैं, so that we can set precedence among the operators. This is the start of the input, this is the end of the input. So if you look at this side, जो डॉलर की प्रेसिडेंस होगी वो कम होगी लीडिंग ऑफ ई से. ओके, ये लेस देन है तो डॉलर की प्रेसिडेंस लेस देन होगी ऑल द सिम्बल्स इन लीडिंग ऑफ ई. लीडिंग ऑफ ई क्या है, प्लस, तो डॉलर की प्रेसिडेंस ई से कम होगी. और कौन कौन सा है, एस्ट्रिक्स है, तो डॉलर की प्रेसिडेंस इससे एस्ट्रिक्स से कम होगी. दिस इज ओपनिंग पैरेंथेसिस से कम होगी और आईडी से कम होगी. और अगर हम इस साइड को देखें तो ट्रेनिंग ऑफ ई है, उसकी सिम्बल्स की प्रेसिडेंस डॉलर से ज़्यादा होगी. तो ट्रेनिंग ऑफ ई में ये सिम्बल्स हैं, इन सब की प्रेसिडेंस डॉलर से ज़्यादा होगी. तो प्लस है, इसकी प्रेसिडेंस डॉलर से ज़्यादा होगी. एस्ट्रिक्स है, इसकी प्रेसिडेंस डॉलर से ज़्यादा होगी. क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, इसकी प्रेसिडेंस डॉलर से ज़्यादा होगी
और आईडी की प्रेसिडेंस डॉलर से ज़्यादा होगी। ओके, तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। ओके, hope you will be able to understand how we have constructed this table. Okay, this is the operator precedence table for the given grammar we have just computed. Okay, now let's see operator precedence relations. The operator precedence parser does not use the operator precedence parsing table because as the number of operators increases, the size of the table also gets increases, and it becomes more time consuming to find the operator precedence relations among the operators. Okay, due to that the operator precedence parser uses this operator precedence relations table. So now here we will see how we can construct this operator precedence relations table from the operator precedence parsing table. Okay, for that we have to create FA and GB for each grammar terminal A and for the end of the string symbol. तो हमें हर ग्रामर टर्मिनल सिंबल और एंड ऑफ द स्ट्रिंग सिंबल दैट इज डॉलर के लिए दो फंक्शन क्रिएट करने एफ ए एंड जी बी। ओके, जैसे यहाँ आई डी टर्मिनल है तो इसके लिए एफ आई डी एंड जी आई डी दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो देयर आर 4 टर्मिनल्स इन दिस एग्जाम्पल, तो वी हैव टू क्रिएट इन टोटल 8 फंक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू पार्टीशन द सिम्बल्स इन द ग्रुप्स सो दैट एफ ए एंड जी बी आर इन द सेम ग्रुप इफ ए इज सेम प्रेसिडेंस विद बी। तो अगर ए और बी की प्रेसिडेंस सेम है तो इनके जो एफ ए और जी बी है उनको हमें ग्रुप करके एक ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी ऑपरेटर्स नहीं है जिनकी प्रेसिडेंस सेम है, क्योंकि इस टेबल में कहीं भी इक्वल टू साइन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट दिस ग्राफ। तो क्रिएट ए डायरेक्टेड ग्राफ हुज नोड्स आर इन द ग्रुप्स। नेक्स्ट फॉर ईच सिम्बल्स ए एंड बी डू प्लेस एन एज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ जी बी टू द ग्रुप ऑफ एफ ए इफ ए हैज़ लेस प्रेसिडेंस देन बी। तो अगर हमें ए की प्रेसिडेंस बी से कम है तो हमें जी बी से एफ ए की ओर एच ड्रॉ करनी है। ओके, तो अगर हम आपको एग्जांपल देखें, दिस इज योर प्लस एंड आई डी। तो प्लस हैज़ लेस प्रेसिडेंस देन आई डी, तो यहाँ पे आपका जो ए है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग प्लस एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग आई डी। व्हाट वी हैव टू डू, जी आई डी से एफ प्लस पे हमें एक एच ड्रॉ करनी है। दिस इज योर जी आई डी एंड दिस इज योर एफ प्लस। ओके, दिस इज योर एफ प्लस। तो जी आई डी से एफ प्लस की ओर हमने एक एच ड्रॉ की है। ओके, इफ यू सी एट दिस दैट डॉलर हैज लेस प्रेसिडेंस देन आई डी। ओके, तो ए इज योर डॉलर एंड आई डी इज योर बी। ओके, तो जी आई डी से एफ डॉलर को हमें एच ड्रॉ करनी है। दिस इज जी आई डी एंड दिस इज एफ डॉलर। वी हैव ड्रॉन एन एच फ्रॉम जी आई डी टू एफ डॉलर। ओके, अदरवाइज if A has higher precedence than B, place an edge from the group of FA to that of group GB। तो अगर A की प्रेसिडेंस B से ज़्यादा है तो FA से GB की ओर हमें एज ड्रॉ करनी है। ओके, जैसे यहाँ देखें आई डी हैज़ हाइयर प्रेसिडेंस देन प्लस, तो यहाँ पे आपका A है आई डी और B है प्लस। ओके, तो हमें एफ आई डी से G प्लस की ओर एज ड्रॉ करनी है। तो एफ आई डी से एंड दिस इज जी प्लस, वी हैव ड्रॉन एन एच। इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस ग्राफ। ओके, नाउ यूजिंग दिस ग्राफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल। हाउ, इफ द कंस्ट्रक्टेड ग्राफ हैज ए साइकिल देन नो प्रेसिडेंस फंक्शंस एग्जिस्ट। अगर इस ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करती है तो ऑपरेटर्स के बीच में कोई भी प्रेसिडेंस फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इन दैट केस दिस टेबल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। ओके, व्हेन देयर आर नो साइकिल्स connect the length of the longest path from the groups of FA and GB respectively। अब चूंकि साइकिल नहीं है इस केस में तो वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम FA and GB। ओके, सपोज हमें एफ आई डी कैलकुलेट करना है तो हमें दिस इज योर एफ आई डी इज देयर। यहाँ से हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट पाथ क्या है फ्रॉम दिस एफ आई डी नोड। ओके, तो यहाँ से अगर आप इस नोट पे जा रहे हैं, फिर यहाँ से आप इस नोट पे जा रहे हैं और यहाँ से आप कहीं नहीं जा पाएंगे। तो लेंथ इज फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर। टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ इज 2। ओके, इफ यू कम फ्रॉम एफ आई डी टू जी प्लस एंड जी प्लस से एफ प्लस से ओके जी प्लस एंड जी प्लस से एफ डॉलर जा रहे हैं
तो दिस इज length 1, this is length 2, this is length 3 and this is length 4. तो this path has length 4. तो FID से जितने भी पाथ हैं उस पाथ में जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है उस पाथ की लेंथ आपको यहाँ पे लिखनी है. ओके, इफ यू सी एज द F डॉलर, तो देयर इज नो एज गोइंग आउटसाइड दिस, द लेंथ इज 0. F डॉलर इज 0. तो दिस वे यू कैन compute the operator precedence relations. Okay, now how you can use this operator precedence relations to find the precedence among operators? If FA is less than GB, whenever A yields precedence to B, अगर कोई दो ऑपरेटर हैं और उसमें A एंड B और ऑपरेटर A की FA की वैल्यू ऑपरेटर B के GB वैल्यू से छोटी है, इट मीन्स कि ए की प्रेसिडेंस बी से ज़्यादा है. ठीक है, सॉरी, ए की प्रेसिडेंस बी से कम है. ओके, तो ए हैज़ लेस प्रेसिडेंस टू बी. अगर एफ ए इज इक्वल टू जी बी है, इट मीन्स ए एंड बी हैव द सेम प्रेसिडेंस. एंड एफ ए इज ग्रेटर देन जी बी, इट मीन्स ए हैज प्रेसिडेंस ओवर बी. तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ एफ ए एंड जी बी, द पार्सर डिसाइड्स द प्रेसिडेंस रिलेशन among the operators. Okay, so hope in this video what we have learned, we learn what is operator precedence parser. Okay, how we can compute needing and training of non-terminals, how we can construct operator precedence parsing table, and in the last how we can construct operator precedence relations. Hope you will be able to understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.